जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਪਲ 'ਚ ਨੇ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਨੇ। ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਆਫਿਸ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸੰਵਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਚਿਕਨ ਵਿਕਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗੁਣ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਉਸਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੁੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਐਸ ਉਸਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਛਡਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚੀ ਪਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਦਮ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਜੂਆ ਖੇਲ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਏ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ,
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਅਰਦਾਸ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਵੇਂ ਲਿਆ, ਬਟ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਪਾਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਬਸ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਦਮ ਅਨੰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु जी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜਾ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुकराना 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 शुकराना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लुधियाना पंजाब से संध्या वेले का शुकराना करन लगी, गुरु जी के चरणों में अर्पित करन लगी हूँ। गुरु जी मेरा शुकराना स्वीकार करो। आज वीरवार का दिन है, गुरुवार का गुरु जी का दिन। वीरवार दिन तरीक 23 तरीक इस टाइम 6:09 हो रहे हैं शाम के। मैं गुरु जी के पावन मंत्र के नाल शुकराना शुरू कर लगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। मैं गुरु जी की आग्ञा नाल सत्संग शुरू कर लगी। जो गुरु जी मेरे को बुलाएंगे मैं वो ही बोलांगी। संगत जी
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਠਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 7:45 ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਜੇ ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਬਰਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦੋ ਤੋਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੀਂ ਚੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਮਲਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਓ, ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਤੋਂ 5,000 ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਓ, ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੰਤੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਸਭ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਛਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਦੀ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बच्चों के साथ हमेशा सदा की रक्षा करना, हमेशा उनके साथ रहना, इस चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का मेरे बच्चा की सहायता करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालक मैं कैसे शुक्राना करूं अपने गुरुपा का। इतने चमत्कार मेरे गुरुपा ने मेरे साथ किए हैं। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, कई बार आ चुका था बेटी के लिए, बेटी के ऊपर कुछ संकट आ रहा, कुछ संकट मंडरा रहा। तू सत्संग सुन, मैं उसका कष्ट छोटे में काट दूंगा। कई बार मैंने सत्संग सुना। फिर मेरी बेटी दिल्ली में ही यह जॉब करती है और वो बस में सफ़र कर रही थी। बस से यानी कि उतरना था उसको, और वो जैसे उतरने खड़ी हुई और आगे से आ रही थी बस आ रही थी तो उसने एकदम से ब्रेक लगाया और वो खड़ी थी और सब लोग बैठे थे। वो खड़े होकर इतनी तेज़ गिरी कि पता नहीं गुरुपा ने उसको कैसे बचाया। जब वो गिरी तो उसके कायदे से बहुत ज़्यादा चोट आनी चाहिए थी, लेकिन गुरुजी ने उसको इतना बचाया। हमारे गुरुजी ने कई बार वो जान तो गिर चुकी है, तो एक बार तो बहुत तेज रास्ते में गिरी हुई थी। उसके पैर में कोई तार पड़ा हुआ था बिजली वाला, वो जान तो फंस गया। तब भी वो बहुत तेज़ गिरी थी तो उसके बहुत चोट आ गई थी, लेकिन गुरुजी ने उसको फिर भी बहुत बचाया। शुक्राना मेरे माला, मेरे बच्चों को बचाने का शुक्राना। छोटी बेटी है, आई हुई है, तो पानी बदला क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैसेज तो यही आ रहे थे ब्लैक मैजिक की वजह से। और छोटी बेटी की मेरी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, अचानक तबीयत ख़राब हो गई। गुरुजी एक साथ तीनों बच्चों की तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है। तो ब्लैक मैजिक ही क्या है हमें नहीं पता है, आप जाने, आपका काम जाने। तुम जाने तेरा नाम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बच्चों के हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, नेगेटिविटी से बचाने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना, हर बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना, हाय बद्दुआ से बचाने का शुक्राना। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसका बेटा है,
पति नहीं है, इतने सरक रखती है वो, इतना परेशान करती है लोगों को कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इतनी बद्दुआ है, मेरे बच्चों को देख लेगी तुरंत बद्दुआ देने लगती है। ये मेरे गुरुजी, उससे बचाने का शुक्राना। मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को, उसकी तबीयत खराब है छोटी बेटी की, डॉक्टर के यहाँ भी वो गई लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा है उसको, बस उसकी ठीक हो जाए मेरी बेटी। मेरे शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी। और मुझे गुरुजी ने, देखिए ये मैं कोई संगत के द्वारा नहीं मैसेज है, मुझे खुद गुरुजी ने सपने में खुद दर्शन दिए हैं। मैं क्या है कि मैं सो रही हूँ और मुझे क्या है कि ये क्या है, लड़का है 20-22 साल का, बहुत सुंदर सा, वो क्या है तिलक लगाए हुए है और बैठा माला फेर रहा है। और हम वहाँ से गुजर रहे तो वो हमको क्या है कृष्ण भगवान भेंट दिए उन्होंने, इतने सुंदर कृष्ण भगवान। वो बहुत बड़ा मंदिर सा बना है, उसी के ऊपर एक बॉक्स रखा है और बॉक्स वो सोने का बॉक्स है और मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी, अब मैं उनका श्रृंगार ऐसे ही किया करूँगी जैसे ये लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैं उनके लिए फूल लेने जा रही हूँ माली के यहाँ से। तो एक लोग मिली तो वो कहती हैं तुम्हें मालूम है इसमें क्या है? तो हम कह रहे क्या है इसमें? तो बोले ये बॉक्स है, इसके अंदर भागवत है। हम कह रही वाह ये तो भागवत भी है। तो मैं उस पर इतना मत्था टेके इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरे पास भागवत महारानी भी आ गई हैं। जय हो मेरे गुरुपा, इतना ब्लेस करने का, मुझे दर्शन देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरुजी, मेरे बच्चों को हर इसे बचाने का शुक्राना, ब्लेस करने का। और मेरी बड़ी बेटी बहुत परेशान रहती टेंशन में, क्योंकि वो आगे की तैयारी कर रही है, उसका पेपर नहीं निकल पा रहा। वो रात दिन एक कर रही, पढ़ाई भी कर रही और जॉब भी करती है। उसके दिन ड्यूटी भी जाती है, पुलिस में है और वो और अपनी तैयारी कर रही है SI की, पुलिस IAS की, मतलब बहुत पेपर उसने भर चुके हैं। वो दिन रात पढ़ाई, इतनी टेंशन में रहती है, इतनी टेंशन में कि हर चीज़ एक तो भूल जाती है। और बहुत अब इतनी तो दुबला गई है, इतनी बीमार सी, हमें समझ में नहीं आता इसको क्या हो गया, इतनी दुबली सी हो गई। जैसे पहले जैसे चेहरा इसमें इतना ग्लो था, उसके चेहरे पे इतनी कि हम खुद उसको देखते तो ये सोचते कि इसको होगा, ये कैसी हो गई है। हे मेरे गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरे तीनों बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे गुरुपा। और उसका पेपर जो वो इतनी मेहनत कर रही है, रात दिन बस उसका पेपर निकाला है मेरे गुरुपा, उसकी रक्षा करो, अंग संग रहो। हे मेरे गुरु जी, तेरी हेल्पर का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर कष्ट से, हर मुसीबत से, हर रोग से, ब्लैक मैजिक से बचाने का, हाय बुरी नज़र बद्दुआ मेरे बच्चों को हर चीज़ से मुझे बचा, आँखें ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी आँखें बहुत दिनों से पता नहीं क्या हो गया, मेरी आँख, मुझे बहुत धुंधलापन दिख रहा है। गुरुजी के मैसेज आते मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन अच्छा, और वो जो जल प्रसाद रखते हैं उससे भी धो रही हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं। देखिए गुरुजी खुद आँख ब्लेस मुझे ऐसा करेंगे। और पता नहीं मैं हर चीज़ में भूल जाती हूँ, वही मेरी बेटी के साथ हो रहा है, हर चीज़ हर काम वो भूल जाती, इतनी टेंशन में रहती मेरे गुरुपा की याददाश्त जैसी वो पहले और अच्छा अपनी तरफ से उसको थोड़ा दिमाग दे दो मेरे गुरुपा, अपने हिसाब से अपनी तरफ से वो जैसी लड़की होती है वो वैसी हो जाए, बहुत अच्छी सी जाए मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा समस्या, गुरुजी सदा सहाय। आज मैसेज आ रहा था शुक्राने का दिन है, शुक्रवार के दिन शुक्राना कर। जय मेरे गुरुजी। मंत्र संगत जी, हमसे कुछ भूल चूक हो जाए सत्संग करने में तो हमें क्षमा करना, हमें सत्संग करना नहीं आता। बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था तू सत्संग कर, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, पर हमें करना नहीं आता तो मैं डाल नहीं पा रही थी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय जय गुरुजी। बाबा क्षण क्षण का शुक्राना है, मेरी हर धड़कन का शुक्राना है। आप मेरे दिल में बसे हो प्रभु, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। सुख में भी सिमरन है, दुख में भी सिमरन है मेरे दाता। मुझे आप मिले हो, मेरा जीवन का सब कुछ मिला हुआ है बाबा। पल पल आपका शुक्राना है, पल पल आपकी भक्ति भाव मंत्र जाप सिमरन करती रहूँ, आपके चरणों की सेवा करती रहूँ। सदा चरणों की सेवा मेरे पास रहे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा जब तू है हारे का सहारा, क्यों ना सुने फिर मेरी पुकार। याद करूं मैं तुझे बारंबार, बाबा तू है मेरा सहारा, तू है मेरा सहारा। जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अभी अभी सॉरी बेटा, मैं तुझे बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ। इसे मिस मत करना। तेरी एक आदत है, पहले गलती कर देती है और बाद में पछताती है। हाँ मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, ये संदेश यूं ही नहीं आया है, तेरे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। ऐसी सौगात हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलती। अगर तुझे ये सौगात मिला है तो समझ ले तेरा समय बदलने वाला है। आज जहाँ भी तू है बस एक बार सच्चे भाव से शुक्राना कर, फिर देखना आगे 2 घंटों में तुझे एक बहुत बड़ी शुभ समाचार मिलेगा। शुक्राना करना बेटा, यही तेरे जीवन की नई शुरुआत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे दाता। इस पावन दिव्य आशीर्वाद के लिए आपने मुझे चुना है, आप मुझे इतना दिव्य आशीर्वाद दिया है बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। हे परमात्मा, आपकी बच्ची पे ये दया करने का शुक्राना है। प्रभु आप हर पल हर क्षण मेरे साथ हो, अंग संग हो और हमेशा ध्यान रखते हो मेरा और मेरा परिवार का, इसके लिए भी आपका शुक्राना। बाबा आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता। आप पल भर में क्या कर सकते हो, पल भर में क्या करने, बाबा वो आप ही जानी जान हो। और आप इतना देखे भी कभी नहीं जताते हो, जो हम नहीं जानते वो सब कुछ आप जानते हो। बाबा मुझे ऐसी सौगात हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ किस्मत वालों को। किस्मत वालों में आपने मुझे समझी है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज तुझे ये संदेश मिला है तो समझ ले समय बदलने वाला बाबा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ बाबा। आज जहाँ भी तू है बस एक सच्चे भाव से शुक्राना है बाबा। मेरा दिल से, दिल की गहराई और सच्चे भावना से आपका शुक्राना बाबा। मैं हमेशा सच्चे भाव से आपकी पूजा कर, सच्चे भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से आपका पूजा पाठ करती हूँ बाबा। और ये आपका संदेश जो है उसके भी सच्चे भाव से मैं तहे दिल से अपने सर आँखों पे है बाबा आपका आशीर्वाद, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे दाता, जो आपने अपनी बच्ची पे ये मेहर की है, आपने ये रहमत मेरे पे की है बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है बाबा। हर पल हर क्षण का शुक्राना है। पल पल दाता आप साथ हो, पल पल आप हमारा कल्याण करते हो, पल पल हमारा दुख दर्द सुख दूर करते हो और कुछ संकट आने से पहले ही छोटे में कटवा देते हो बाबा। सत्संग भी सुना सुना कि आप हमारे माड़े कर्मों का भी खत्म किए, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। शुक्राना तो करना हमारा फर्ज है, हम दूसरा करते क्या है। आप पल पल हमारा इतना करते हो जो हम एक शुक्राना भी छोटा पड़ जाता है बाबा।
लेकिन हम आपके बच्चे, हम आपकी महिमा गाने में भी असमर्थ, लेकिन आपकी महिमा हम आपके बच्चे गाए बिना नहीं रह सकते। और आपका इतना शुक्राना है बाबा, कि हम शुक्राना करते करते भी थक जाए और शुक्राना कम पड़ जाए बाबा। इसके लिए आपका अनंतम बेहद शुक्राना मेरे प्रभु महाशिव जी, मेरे सदगुरु महाराज, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। और आपके चरणों की दासी, आपके चरणों में आपके चरणों की सेवा ही करती रहे, भक्ति करती रहे, सबका अच्छा सोचती रहे, कभी किसका बुरा ना करूं, कभी जीवन में अभिमान की जगह न रखूं, और हमेशा आपकी बताई राह पे चलूं, आपके वचनों पे खरी उतरूं, और आपको जो अच्छा लगे वैसा ही काम करूं बाबा। और मेरी जाने अनजाने में कुछ गलतियां होती है तो आप क्षमा करो दाता। और अभी एक चैनल पे बाबा बहुत शुक्राना, कल शाम रात से भी 2 शुक्राना और आज भी बहुत 5-6 शुक्राना है, लेकिन राज अंकल ने अभी तक शेयर नहीं किया है। अभी करेंगे, मैंने मैसेज भी किया है, लेकिन अभी करेंगे वो बाबा। शुक्राना तो करके रख दिया है मैंने, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुबह 3 बजे 3:30 बजे भी मैंने शुक्राना किया। 3:24 को पहला शुक्राना है मेरा, 3:32 को दूसरा है। तो बाबा शुक्राना तो कर दिया है बाबा। और ऐसे भी हर पल हर क्षण आपका शुक्राना है ही है, जो ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी कि जो उसमें शुक्राना नहीं हो, हर चीज़ में आपका शुक्राना है। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के पालनहार, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन और मनन बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना। सब भला करो, सबका भला करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु पा शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। गुरु पा आपकी बेटी इतनी नालायक है कि अपना काम सीधे ढंग से कर ही नहीं पा रही है, इसीलिए आप सबको करना पड़ रहा है मेरे मालिक। संगत जी, मेरे गुरु पा का इतना प्यारा मैसेज आया कि अब हम मेरे काम जो भी थे वो अब मेरे गुरु पा के लिए शुक्राना 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 मेरे दाते शुक्राना। गुरु पा बस मुझे ये है इतना दिखाने के लिए शुक्राना कि यहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं ये पॉजिटिव लेने आ रहे हैं। रिया कभी चीकू को काव्या के पास भेजा जा रहा है तो रिया को छोटी वाली के पास, एक ना एक दोनों को मतलब अलग अलग भेजा जा रहा है गुरुपा, ताकि ये दोनों बच्चों की पॉजिटिव लेके जाए, नेगेटिव यहाँ छोड़ के जाए गुरुपा। क्योंकि पूनम ने अपने बच्चों को इतनी नेगेटिविटी चीजें दे रखी है, जैसे कपड़ों पे सुसु करना, क्योंकि चीकू कभी सुसु नहीं करती थी गुरुपा। ये चीज मैं अब नोटिस करने लगी हूँ, मैं पहले कभी नहीं नोटिस किया गुरुपा, ये चीजें मैंने कभी नहीं नोटिस किया। मैं सोचती थी गुरुपा चलो सब फैमिली है, एक फैमिली है तो बच्चे है छोटे गुरुपा, ननद एक ही है मेरी, मैं सोचती हूँ प्यार से रखूं मिलजुल के रखूं, पर गुरुपा कोई विश्वास के लायक नहीं है। ये दिखाने के लिए शुक्राना 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 मेरे दातिया शुक्राना। गुरुपा रात के 1:30 बजे पूनम का आना और वो भी रमन को लेके ना, और आके तीनों के चरणों में उसने लिटा के लेके जाना, तो इसका मतलब ये चाहते गुरुपा जो भोले बाबा जी आए मेरे घर में मुझे आशीर्वाद देने, मेरे अपनी बेटी के जो बिगड़े काम वो बनाने गुरुपा, मतलब वो चाहती है कि वो जाए और मैं हमेशा रोती रहूं बिलकती रहूं और मेरे घर में कभी कोई खुशियां ना आए, और बस मेरे घर में हम ही दुख ही दुख और लड़ाई झगड़े रहे गुरुपा, ये चाहते हैं गुरुपा इसका मतलब। क्योंकि गुरुपा सारे मेरे घर से पॉजिटिव एनर्जी ले जाके निशा के कमरे में छोड़े जा रहे हैं गुरुपा। मेरे घर के एक एक सामान गुरुपा, सफाई करने वाला भी वहीं पर था, वो ले यहाँ से लेके ना सफा करके ना उसके द्वारे पे रख दिया गुरुपा। हर चीज लेके जाना, हर चीज ये चीज नोटिस करे गुरुपा। जो चीकू खा रही है वही रिया काव्या जो छोटी वाली कर रही है वही दोनों बच्चों को, मतलब कैसे ना कैसे, और यहाँ तक कि रमन को मैंने देखा गुरुपा छोटी वाली बेटी को आंखें दिखाते हुए उसे मतलब कि ऐसे दिखाते हुए जैसे इंसान नहीं वो राक्षस है एक तरीके से। मेरे मालिक ये क्या है, मेरे मालिक मेरे दाता देखना ये सब क्या हो रहा है।
गुरुपा मैं इतना जानती हूँ मेरे मालिक, बस मुझे इतना पता है गुरुपा कि बस मेरे बच्चों की जो पॉजिटिव है वो नहीं लेके जाना देना गुरुपा, किसी को भी किसी से भी हाल में भी गुरुपा, क्योंकि मेरी बेटियां बीच में बहुत ज्यादा बेकार हालत में हो गई थी गुरुपा, चीकू तो और ज्यादा हो गई थी गुरु, पता नहीं क्या कभी ऐसी न ऐसी इनएक्टिविटी वाली हरकतें नहीं करी थी, अब तो इतनी गंदी वाली हरकतें करने लग गई है गुरुपा, बहुत ज्यादा, जैसे कहना ना मानना गुरुपा मेरा किसी भी बात का, हर चीज में जिद करना, पहले कभी ऐसा नहीं करते थे, पहले सिर्फ उसको पढ़ाई पढ़ाई दिखती थी गुरुपा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता, कोई आए कोई गया उसे कोई मतलब नहीं था गुरुपा, उसे पढ़ना होता था बस गुरुपा, और अब तो उसने पढ़ाई से दूर और दूर का मतलब कि कर रखा गुरुपा, पढ़ाई तो पता नहीं क्या उसे अच्छी नहीं, कॉपी किताबें फाड़ती है गुरुपा, पहले वो एक एक चीज को संभाल के रखती थी अपनी चीजों को, और अब तो वो एक एक चीजों को ऐसे फेंक देती है गुरुपा, एक एक चीजों को संभाल, कुछ चीजें नहीं रखते गुरुपा, कभी वो बच्ची ऐसी नहीं थी गुरुपा, मेरे बचपन से लेकर 5 साल की हो गई, ये अब होने लगा गुरुपा, ये साल 2 साल से, जब से मेरी छोटी वाली बेटी हुई है और तब से मैंने नीचे ले जाना शुरू करा, तब से ही ये चीजें मैंने देखा गुरुपा, फिर मैंने आपसे जुड़ी गुरुपा, मुझे आपने ही मेरे को सारी सच्चाइयाँ दिखाई गुरुपा कि इस घर में कौन क्या करता है कौन क्या नहीं गुरुपा, और खुद आपने खुद इस आंखों से गुरुपा अपनी इस बेटी को दिखाया गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे दातिया, कि कौन कैसे बच्चों पे ब्लैक मैजिक करता है, कौन कैसे क्या कर रहा है गुरुपा, किस वे में मेरे घर आ रहे गुरुपा, किस वे में चीजें मांग के लेके जा रहे गुरुपा, यहाँ तक कि छोटे बच्चे बड़े बच्चे किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे दाते शुक्राना। कई बार तो ऐसा लगता है गुरुपा कि दादी इनकी चाहती है कि मेरी बेटियों का सारा कुछ उनके पूनम की बेटियों को मिल जाए और उसके पास जो है कुछ ना रहे गुरुपा, उसके लिए ये दिखाने के लिए भी शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा पर गुरुपा उनकी पॉजिटिव अब मैं कह रही हूँ गुरुपा, अगर वो छल करे तो हमें भी अब छल करना पड़ेगा गुरुपा, क्योंकि जैसे को तैसा गुरुपा, बहुत मैं शरीफ बन के रही गुरुपा, पर अब मैं ये कहती हूँ गुरुपा नेगेटिव उनके पास जाए पॉजिटिव यहाँ आए गुरुपा, अब चाहती हूँ गुरुपा नेगेटिव सारी जो घर की मेरी नेगेटिविटी है, बेशक से बच्चे हो बड़े हो लेके जाए, पता तो लगे गुरुपा किसी को दुख देना कैसा होता है, किसी को दुख में रखना कैसा होता है गुरुपा, मेरे भी बच्चे हैं गुरुपा, मैं नहीं चाहती थी कभी किसी के बच्चे के बारे में बुरा, तो वो क्यों मेरे बच्चों के बारे में बुरा चाहते, अब मैं चाहती हूँ गुरुपा सारी नेगेटिविटी जाए और पॉजिटिव आए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी क्या बताऊं, गुरु पापा ने तो हमें अमृत वेला में उठा दिया। मैंने बोला था बाबा हमें अमृत वेला में मैं सोई ही नहीं थी, तो हम सोचे कि सोएंगे तो अमृत वेला कर लेते हैं तभी सोएंगे। उसके बाद अमृत वेला करने के बाद मेरे को नींद, हम बोले बाबा उठा देना आप, तो बाबा ने हमें 8 बजे करेक्ट टाइम पर उठा दिए थे। इसके लिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और फिर क्या हुआ कि संगत जी गुरु पापा ने फिर क्या हुआ कि घर से कॉल आया, क्योंकि पैसे की तो बहुत दिक्कत है, दिन दिन भर हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, बहुत ही हर वक्त भूखे प्यासे, किसी को जॉब नहीं किसी को काम नहीं है, पैसे की इतनी तंगी है। फिर मैंने कि पापा जहाँ हैं भाई के पास, वहाँ से कॉल आया था कि पापा को ले जाओ छोटी वाले को, तो वो हल्ला गुल्ला करने लगी, चिल्लाने लगी कि सब हमें क्यों कॉल करते हैं, कुछ भी होता है हमें को ले जाओ, हम क्यों ले जाएंगे, हम क्यों ये करेंगे, गुस्सा से बोलने लगी। हम बोले क्या हुआ, जो पहले तो सुन लो, थोड़ी बात है तो हल्ला करना। तो ऐसी सी बात है, दवाई नहीं खाते हैं, टॉयलेट हो रहा है, टॉयलेट हो जा रहा है, बिछावन सब पर ही हो जा रहा है टॉयलेट वगैरह, और दवाई नहीं खा रहा। सर्जरी के लिए भाई बोला कि 10 दिन का मेहमान है, 10 दिन का मेहमान है, बेटी सब आना है तो आ जाओ, 10 दिन का मेहमान है, ऐसे बोलने लगा भाई। वो तो मम्मी टाइम में भी यही बोलता था, क्योंकि मम्मी ठीक होकर आई हॉस्पिटल से, ये लोग
इन लोगों को कोई मतलब नहीं, लोगों को माँ बाप मरे या जड़े कोई मतलब नहीं है संगत जी। इन लोगों बेटा पुतों को कोई मतलब नहीं रहता है। उसका सामने बस सास ससुर माँ बाप होता है, जो भी है साला सरोज है। आज बीवी का सब गुलाम होता है, बीवी का जो है मायके वाला वो सब होता है, माँ बाप से किसको मतलब रहता है। तो ये बात है। तो फिर छोटी वाली बोलती नहीं कि क्यों इतना कहेगा, बाप माँ ने क्या ही बना के रखा है। तो हम बोले नहीं कि अच्छा पढ़ाएगा भी, डिग्री एक मिडिल फैमिली संगत जी, माँ बाप पढ़ाएगा लिखाएगा भी। हाँ, दो बार करके इंजीनियरिंग का की करा, बीटेक का डिग्री दिलवाया, पढ़ाया लिखाया। हाँ, फिर शादी ब्याह करा। अब फिर रेंट के मकान में एक बच्चा तो नहीं है, एक दो बच्चा नहीं है कि चल भाई एक दो बच्चा है तो घर द्वार भी रेंट पर ही रहते, तो घर द्वार नहीं बन पाया। अब बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, कुछ बना दिया, तो अपना घर द्वार कमाओ बनाओ, इसमें क्या है। कि दोनों भाई बहन एक छुटकी और वो दोनों ये वो होने लगता है। तो जो जो भी है तो डर कि जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंत बार शुक्राना। ऐसे ऐसे बोले थे। हम कहे कि ठीक है गुरु जी, गुरु पापा आप मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, जो भी है वो दवाई वाई खाएं। वो बार बार पापा को आदत हो गया। यहाँ जो दिखा है ना, एक बार सर्जरी हुआ था, वायलेट अडल्टिंग कैथी में सर्जरी हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि एज हो गया है ना, अंडर एज हो जाने पर सर्जरी होने लिखी रहती है। तो एक बार हुआ, ठीक है। अब पापा की आदतें हो गई हैं कि बार बार सर्जरी कराना, बाबा ये मत होने दीजिए, बाबा बार बार सर्जरी मत होने दीजिए, डॉक्टर बन के आप ही इलाज कीजिए, दवाई दारू से ठीक हो जाए, दिखा सुना दे और ठीक हो जाए, बाबा आप ठीक कर दीजिए। ऐसे ऐसे भाई बता रहे थे कि दवाई भी नहीं खाता है ना उनको लगता है कि हम लोग जहर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। वो समझ में आता है, बीमार जब इंसान पड़ता है ना तो उनको मेन बात है, बेटा पुतो उतना केयर नहीं करता होगा, बेटा आता होगा ऑफिस से तो देखता होगा। मेन बात है पुतो चार लगा के भी तो बना कर भी तो बोलता है। मेन बात पुतो ऐसी होती है कि पोता है, बड़ा पोता को भी बाहर बाहर भेजती है, भाभी खेलने उलने के ख्याल से बाहर बाहर जा, खाना वाना क्रिकेट क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तो 2 3 दिन पर आता है। मिनवत बेचारे को देखने के लिए भी कोई नहीं है। मिनवत अकेले पड़ा हुआ रहता होगा, टॉयलेट वॉयलेट हो जाता होगा, तो कपड़ा वपड़ा मिनवत कपड़ा लता भी कौन खींचेगा, ये दिक्कत हो जाता होगा। खाना पीना अभी इतना ना झलदार तीखा मसालेदार बनाती है कि तकलीफ होती होगी, समझ रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझेगा ना। लेकिन पापा को भी हम क्या ही बताएं संगत जी, हम क्या बताएं। अब यहाँ लाने की बात थी कि यहाँ भी 1 रूम का ही बेच है। 1 रूम में बच्चे बच्चे बाथरूम वूथरूम नहीं जाने देते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही ये है। तो भाई ने बोला कि हम 5,000 देंगे, आप 5,000 तो ऑलरेडी मिलता ही है, 10,000। तो बोलो उसको बड़ी वाली को कि पापा का सेवा करे, अपना पापा को अच्छे से रखे करे, मैं 5,000 एक्स्ट्रा दे दूँगी उसको। तो हम लोग कहें कि सेवा तो नहीं करेगी सेवा। ये दोनों हैं, बड़ी वाली दोनों भाई बहन है ना, बड़ी वाली और ये भाई भैया मेरा भाई और भाभी, ये सब सेवा हुआ करने वाले में से नहीं। लोग पैसा चाहिए लेकिन सेवा करने वाले में से है नहीं। हम हैं तो वो बड़ी वाली हाँ करेगी। और बाप माँ भी तो इन लोग को ही देखते हैं ना, एक बड़ी बेटी के लिए और बेटा के लिए जान प्राण देते रहते थे। अभी तो पता चलना चाहिए ना कि कौन क्या करेगा। हम कहें कि मेन बात है संगत जी, छोटी वाली को जॉब नहीं है, कुछ इनकम है नहीं, पैसे उसे नहीं है। चलो एक फ्लैट और यहीं ले लेते हैं बगल में, अभी खाली भी होने वाला है नवंबर में। तो फर्निश है, 12,000 का है। तो 12,000 के कहाँ से दे, बिजली अलग से होगा, तो सोचिए 13-14 हज़ार हो जाएगा। तो कहाँ से कर पाएगा। इसलिए नॉर्मल वाला हो 8-8 हज़ार 9,000 तक हो तो सोचेंगे लेने के लिए। क्योंकि वहाँ हम समझ रहे हैं कि वहाँ अकेले पड़ जाते होंगे, तो अपने ही मस्त रहती है, बच्चे लोग अपने ही मस्त हो गया, भाई ऑफिस से आता होगा थका मारा तो अपना थोड़ा मोबाइल वोबाइल थोड़ा सीरियल वगैरह जो देखता है, हल्का फुल्का फिल्म वगैरह देखता होगा, वो भी तो थक ही जाता है। मेन बात है वो एक इंसान क्या ही करेगा, ऑफिस जाएगा काम करेगा ये करेगा। तो वही बोला कि उस पता है जेंट्स लोग को पता चल जाता है कि तो करेगी नहीं सेवा, वो तो करने वाली है नहीं। वो अपना हस्बैंड बीमार पड़ता है तो करती ही नहीं है, हस्बैंड और बच्चा बीमार पड़ता है तो सबकी करती है। तो ये तो सास ससुर है, सास ससुर को तो बोलता है मर भी नहीं जाता है। इधर भी आई थी तो बोलती थी भाभी
क्या अभी लोग को तो मरने का टाइम है, अभी तक मरते नहीं है। ऐसे करके मुंह फट्टी एकदम है, बिल्कुल ही मुंह पर ही सबको बोल देती है, उनके बाल बच्चा के सामने ही बोल देती, बेटियों के पास सामने की कैसा लगेगा उस पर, कुछ नहीं समझती है। तो ठीक है, कहते नहीं जैसी करनी वैसी भरनी, कभी न कभी तो उसका भी समय आएगा, उसका भी यही आएगा ना। तो ऐसे किसी को करना नहीं चाहिए समझिए। तो वही अभी भाई कहा कि एडमिट करने की ज़रूरत है, बाबा आप ही एडमिट अच्छे से करा दो, आप ही डॉक्टर बन के पापा का इलाज करो, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, छोटी वाली जाएगी। अब इसकी भी काम प्रोजेक्ट का दे दीजिए थोड़ा बहुत, कि वहाँ पर भी बैठ के लैपटॉप में आप बोले कि हमको हॉस्पिटल का चक्कर। अरे हमको कोई अथी नहीं, लेकिन बाबूजी हमको यहाँ थे संगत जी हॉस्पिटल में, तो बाबूजी पापा ने हमको कैरेक्टर ही मेरा अथी उछाल दिए थे कि ये कंपाउंडर इससे बात कर रहे थे, इसे मैंने कि गलत चला था। और पढ़ी लिखी लड़की और पढ़ी एजुकेटेड वाले को पापा नहीं बोलते हैं, जबकि पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, लेकिन उतना नहीं है ना, डिग्री वाले नहीं है। मैंने कि डिग्री वाले तो इन लोग बेट बहुत ज़्यादा करते हैं और सामान वाले को कुछ से कुछ बोल देते हैं कि इससे फंसा हुआ है, इससे फंसा हुआ है, ऐसे बोल देते हैं। जबकि मम्मी के टाइम में हम ही पूरा हॉस्पिटल में ऊपर नीचे दिन भर रात भर करते रहते थे। भाई लोग कभी कभी आता था देखने सुनने के लिए, बाकी सारा चीज़ मैं ही करती थी। तो मम्मी को पता है, हम कहें कि कोई बात नहीं, हम पापा को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है हम, लेकिन गुरु पापा सब वहीं से करा दीजिए। फिर बाबा पैसा को दीजिए तो यहाँ एक फ्लैट लेंगे तो तभी ना पापा आएंगे। पता है कि वहाँ मन नहीं लग रहा होगा उनको। फिर बेटी, तीनों बेटियों को कुछ हुआ नहीं है। बड़ी बेटी के साथ ऐसे ही बात है, दूसरी बेटी के शादी ही नहीं होता है, उसका आजम पे क्या बीतता है समझ सकते हैं संगत जी। और तीसरी बेटी के जॉब ही नौकरी ख़त्म हुए, साल लगने को है, अभी तक जॉब नौकरी नहीं लगा है। तो बाप को लगे क्या खाती हुई, क्या पीती हुई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत तरह का होता है ना, पेरेंट्स समझते हैं, तो वो जीने के लिए चाहते हैं। मेरे पापा का है मरना नहीं चाहते, वो जीने के लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए हम। लेकिन बाल बच्चा नहीं समझता है ना, वो सोचता है कि ये बुढ़ा है, जी के क्या करोगे, मर जाओ, ये सब समझता है। बेटा पुता तो यही सोचता है। और बाकी बेटी तो भाई बाबा ऐसा मत होने देना, बाबा कुछ ना हो, ठीक कर दीजिए। क्योंकि माँ ख़त्म हुई थी तो सब हम पर लांछन लगाया था कि शादी भी नहीं और माँ ख़त्म हो गई। बाप को कुछ होगा तो फिर हमको सबको सेगा कि बाप माँ भी कितनी अभागन है, कितनी ये है। और भाई ये सब लांछन में मत लगने देना बाबा, ठीक कर दीजिए बाबा। अभी नहीं बाबा, माँ तो सपना नहीं देखी बेटी दामाद का साथ